फाइट तो मैं जीत गया और फिर फायदा आपको ದೇಶದ ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಯುವಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರೋ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಪದಕಗಳು ಮಾತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಸೋಮವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ಲಾಸ್ಗೋದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 2026ರ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಸತ್ಕರಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಶ್ಲಾಘಿಸಿರೋ ಮೋದಿ ಅವರು ಭಾರತದ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪದಕಗಳು ಕೇವಲ ಮಾತುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೊಡುತ್ತವೆ ಅಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿದರು. ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ತಮ್ಮ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಭೇಟಿ ಕೊಡೋದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 12 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡ್ರು. ನಾನು ಸುಮಾರು 12ರಿಂದ 13 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗೋರಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳೇ ಪ್ರಮುಖರು. ಕಳೆದ 12 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಟ್ಟಿರೋ ಪರಿಶ್ರಮ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಡೆಸಿರೋ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನ ಹಾಗೂ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹೊಸ ಎತ್ತರಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದ ಪರಂಪರೆ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಯುವ ಜನರನ್ನ ಕ್ರೀಡೆಯತ್ತ ಆಕರ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಸಾಧನೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ. ಶಾಲೆಗೆ ತೆರಳಿ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಗೆಲ್ಲೋ ಪದಕಗಳು ಯುವಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ತಂದುಕೊಡುತ್ತವೆ. ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಆಗೋ ಪರಿಣಾಮಕ್ಕಿಂತ ನಿಮ್ಮ ಪದಕಗಳು ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೋದಿಯವರು ಅನೇಕ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಜೊತೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಸಂವಾದವನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. ಮಹಿಳೆಯರ ಶಾಟ್ ಪುಟ್ F57 ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದ ಶರ್ಮಿಳಾ ಧನ್ಕರ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಅವರ ಇಬ್ಬರೂ ಪುತ್ರಿಯರು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಈ ಹಿಂದೆ ಕೊಟ್ಟ ಭರವಸೆಯನ್ನ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ನಿಮ್ಮ ಇಬ್ಬರೂ ಪುತ್ರಿಯರು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ಕಳೆದ ಸಲ ನನಗೆ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ ಅಂತ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಶರ್ಮಿಳಾ ಅವರು, ಹೌದು, ಅವರು ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕವರು, ಮುಂದಿನ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಗೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಮನೆಯಿಂದ 3 ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. 3 बार आप लगातार इतने आंसू टपक रहे थे, मुझे लगता है कि आंसू के हर बूंद से जैसे गोल्ड मेडल टपक रहा है. मैं बहुत ज़्यादा खुशी थी, इमोशनल भी थे उसी दिन, खुशी ज़्यादा था. और मैं इसलिए रोई थी कि मेरा पेरिस ओलंपिक में मेरा 1 kg में मेडल रह गई थी. और एक प्लेयर्स की लाइफ में क्या क्या हमको फेस करना पड़ता है, तो ये 4 साल के अंदर मैं कितना क्या क्या कुछ मैंने फेस किया था. हर टाइम इंजरी ही चल रहे थे और फैमिली प्रॉब्लम वो सब हो रहा था. तो बहुत मुश्किल से मैं ये 4 साल फेस किया था. तो वो सब जब पोडियम में जब मैं खड़ी थे सर, और हमारी जो फ्लैग ऊपर जाते हैं और हमारे नेशनल एंथम जब बजते हैं तो सर हम रुक नहीं सकते सर, अपना आप आंसू निकलते हैं. वो बहुत बहुत बढ़िया. ಮಹಿಳೆಯರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಥ್ರೋ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆದ್ದ ಸೀಮಾ ಕಲಿರಾಮ್ನ ಅವರ ಜೊತೆನೂ ಮೋದಿ ಹಾಸ್ಯಮಯವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಪ್ರಧಾನಿಯನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗುವಾಗ ನಾವು ಆತಂಕಗೊಂಡಿದ್ದಾಗಿ ಸೀಮಾ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಸರ್, ನನ್ನ ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅಂತ ಸೀಮಾ ಹೇಳಿದಾಗ ಮೋದಿ, ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಭಾಷಣಕ್ಕೂ ಒಂದು ಪದಕ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇನ್ನು ಭಾರತ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪದಕಗಳನ್ನ ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಬೆಳೆಸೋದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಕ್ರೀಡಾ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಒಂದು ಭಾಗ ಮಾತ್ರ. ದೇಶ ಪದಕಗಳನ್ನ ಗೆಲ್ಲಬೇಕಂದ್ರೆ ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೀವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಅಂತ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದ್ರು. 2015 वर्ल्ड मिलिट्री गेम थे और मेरी पाकिस्तान के साथ पहली फाइट आ गई थी और वर्ल्ड मिलिट्री गेम था. 12-13 साल इसी मकान में अगर मैंने रेगुलरली और हर बार किसी को रिसीव किया है, किसी को मैं मिला तो खिलाड़ी, पिछले 10-12 सालों के आप लोगों के पुरुषार्थ के कारण, भारत को लगातार विजय दिलाने के आपके प्रयासों के कारण और उत्तरोत्तर सफलता में नई ऊंचाइयां पार करने की परंपरा के कारण जो काम शायद हम स्कूलों में जाके कहें कि नहीं वे खेलना चाहिए, ये करना चाहिए, वो काम स्कूलों में जाकर के हम कर सकते थे, उससे ज़्यादा आपका मेडल उनको इंस्पायर करता है. तुमने मुझे वादा किया था पिछली बार कि तुम्हारी दोनों बेटियां खिलाड़ी बन जाएगी. हाँ जी, अभी भी उम्र की छोटी है, अगले कॉमनवेल्थ में एक घर में 3 मेडल ला के दिखाई. पक्का?
जब मैं दौड़ रहा था, जब मेरा इवेंट था 29 को, तो उस दिन गुरु पूर्णिमा थी, तो ओह। उस दिन मैंने मेरे गुरु को मैंने एक गिफ्ट दे दिया। बड़ी शान बढ़ाई आपने। इतने आंसू टपक रहे थे, मुझे लगता है कि आंसू के हर बूंद से जैसे गोल्ड मेडल टपक रहा है। मैं बहुत ज़्यादा खुशी थी, इमोशनल भी थे उसी दिन, और खुशी ज़्यादा था। और मैं इसलिए रोई थी कि मेरा पेरिस ओलंपिक में मेरा 1 केजी में मेडल रह गई थी। और एक प्लेयर्स की लाइफ में क्या क्या हमको फेस करना पड़ते हैं, तो ये 4 साल के अंदर मैं कितना क्या क्या कुछ मैंने फेस किया था। हर टाइम इंजरी ही चल रहे थे और फैमिली प्रॉब्लम वो सब हो रहा था, तो बहुत मुश्किल से मैं ये 4 साल फेस किया था। तो वो सब जब पोडियम में जब मैं खड़ी थी सर, और हमारी जो फ्लैग ऊपर जाते हैं और हमारे नेशनल एंथम जब बजते हैं, तो सर हम रुक नहीं सकते सर, अपना आप आंसू निकलते हैं। वो बहुत बहुत बढ़िया। आपके इस अचीवमेंट को सिर्फ आपका अचीवमेंट मानता वैसा नहीं, ये आपका विजय आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बन जाए। सब डर रहे थे हमसे कि इंडिया के साथ फाइट आ गई, अब तो हम पहली फाइट ही हार जाएंगे, हमारा मेडल भी नहीं आएगा। यानी मान के चलते हैं। हाँ सर। क्या हुआ, वो रेस्टोरेंट वाले से झगड़ा कर रही थी? हम लोगों का तो इतना अच्छा परफॉर्मेंस था, लास्ट डे था और सब जीत के गए थे और पूरा इंडिया के लोग थे, तो थोड़ा सा मुझे बुरा लग रहा था। तो मैंने उनको अच्छे से बोला, रिक्वेस्ट किया था सर, फिर उन्होंने मान भी लिया, अभी चेंज भी हो गया सर। इस विजय की परिस्थिति, खुशी, आनंद अपने साथियों के साथ और गेम पूरे हो चुके हैं, तो एक हंसी मजाक मस्ती का मूड, ऐसे समय उस मैप पर नजर जाना और उसको रजिस्टर करना और तुरंत सिर्फ मेडल देते समय देश खड़ा हो जाता है, ऐसा नहीं, भीतर से देश का भाव। मैं सच बताता हूँ, ये वीडियो सामान्य नहीं, लंबे समय तक लोगों को याद है। ये बॉक्सिंग वालों से भी दुनिया के खिलाड़ी अब डरने लगे हैं। ज़रूर सर, पूरे सभी डरे हुए थे, एक के बाद एक गोल्ड मेडल आ रहे थे और मतलब पूरा लास्ट में ऐसे धमाका जैसा हो गया बिल्कुल। जिस तरीके से हम लोगों को सपोर्ट मिल रहा है, हमें बैक टू बैक कंपटीशन मिल रहा है, वो एक बहुत बड़ी बात है। और हमारे जितने भी यंग एथलीट हैं वो लोग सभी जैसे खेलो इंडिया स्कीम से आए हुए हैं और ये एक बहुत बड़ा चेंजेस ला रहा है पूरे स्पोर्ट्स में ही। अगर आप लोग खेलो इंडिया को की प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं, और प्रतिष्ठा सिर्फ वहाँ जाकर के रिबन काटने से नहीं होगी, आप वैसे ही खेलेंगे जैसे एक छोटा विद्यार्थी, एक छोटा नौजवान, छोटा खिलाड़ी खेलता है, ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करेगा। क्योंकि अभी तो हमें बहुत आगे जाना है, बहुत मेडल लाने हैं। करगिल विजय दिवस पर किसकी विजय हुई थी? उस दिन कारगिल डे था वैसे, और जिस दिन मैंने पाकिस्तान के साथ फाइट किया था सर, वो उस दिन का था। तो मैं एक इंडियन आर्मी से हूँ, तो मैंने उस दिन मैं पहले से बहुत वो था कि सर पाकिस्तान को हराना है, तो मैंने वो काम पाकिस्तान को एक तरफा मैंने 5-0 से हराया। तो मैंने हमारा इंडियन आर्मी का कारगिल हीरोज़ को मैंने डेडिकेट किया था सर। आपको यह याद रहना, और आप स्वयं फौज से हैं, तो मैं जरूर मानता हूं कि देश के वीर जवानों को आपने जो भाव प्रकट किया कि मैं करगिल के विजेताओं को मेरा मेडल समर्पित करता हूं, उसने उस विजय पर 4 चांद लगा दिए और जिसको पराजित करना था उसी को किया आपने। वो पाकिस्तान की बात चल रही, मुझे किस्सा याद आ गया सर। 2015 वर्ल्ड मिलिट्री गेम थे और मेरी पाकिस्तान के साथ पहली फाइट आ गई थी, और वर्ल्ड मिलिट्री गेम थे तो मिलिट्री वाले का फ़ोन आया कि भाई पाकिस्तान से नहीं आना है। तो फिर मैं फर्स्ट राउंड 4-1 से जीत गया, सेकंड राउंड 3-2 से जीत गया, पर दोनों के सर लग गए आपस में, तो दोनों के लग गए कट। वो फाइट तो मैं जीत गया। उसके बाद फिर दोनों चले गए हॉस्पिटल में टाँके लगवाने के लिए। फिर 2014 में आप फर्स्ट टाइम प्रधानमंत्री जी बने थे, और जो हमारे साथ आर्मी का कोच गया हुआ था उसका नाम नरेंद्र राणा था। और फिर वो कई देर तक सोच के मेरे को बोला कि भाईजान एक बात बोलूँ? हाँ बोलो। बोला भाईजान आपका नाम नरेंद्र है,
आपके कोच का नाम नरेंद्र है, आपके प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र है, तो मुझे नरेंद्र नाम से नफरत हो गई है। सिर्फ आपने मेडल की संख्या बढ़ाई है, ऐसा नहीं, आपने एक पीढ़ी को तैयार किया। मेरे मन में भी धक धक हो रहा है आप सर। चिंता मत कीजिए। पर आज आपको बोलने में भी मेडल मिलने वाला है। मेरे फ्रेंड्स सर्कल में किसी ने बोला था कि मैं उनको कुछ बोलती थी, भाई ये तुम्हारे अच्छे के लिए तुम करो, तो अक्सर मुझे वो बोलते थे कि तू के मोदी से मिल रही है। हरियाणवी में बोल देते हैं सर कि क्या तू मोदी से मिली हुई है कि तेरी बात माने। तो आज मैं आपसे मिली हूँ सर, मैं उनको बोल पाऊँगी कि हाँ मैं मोदी जी से मिली हूँ। कॉमन गेम्स में मेडल, सिल्वर मेडल जीता, फिर मैंने क्रेडिट साहब को दिया। सपना तो था एक बार मेडल जीत के लेके आने के लिए, बट ट्रेनिंग का सेंटर नहीं था। मैंने साई आने के बाद मैं बहुत ट्रेनिंग करके मेडल जीत पा रहा, इसलिए बहुत खुशी थी। मैंने सर को क्रेडिट दिया था क्योंकि बहुत इम्प्रूव हुआ। मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान का विषय है। मेहनत आपने की और मुझे याद किया, मैं आपका बहुत आभारी हूँ दोस्त। वाराणसी में खेल तुम प्रैक्टिस कर रही थी ना? जी सर, बहुत कैसा पसंद बना है। है स्टेडियम? सर अच्छा बना है। वहाँ पे मैं 10-12 दिन के लिए ट्रेनिंग करने गई थी, क्योंकि मैं मंदिर गई थी तो वहाँ पे ही ट्रेनिंग करके आई थी। और मैं वहाँ पे मतलब सेटल भी होना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे काशी विश्वनाथ बहुत अच्छा लगता है सर। भोपाल में ट्रेनिंग कर रही थी? जी सर, 2008। तो उज्जैन जाते थे कि नहीं? जी सर, उज्जैन भी गई थी सर। अच्छा, महाकाल के बाद भी गई? जी सर। तो काशी विश्वनाथ के पास हुआ ही एक बार, ये जी सावन सर। महीना तो भी है। वहाँ घर जाके फिर उसके बाद जाऊँगी सर। ठीक है। साई ने भी सर बहुत सपोर्ट किया है मुझे, हाँ। इसके कारण ही मैं यहाँ तक पहुँची हूँ सर। और मैं खेलो इंडिया स्कीम में भी थी। 2018 में जो फर्स्ट खेलो इंडिया हुआ था उसमें मेरा सिल्वर मेडल था। वहाँ पे भी मैंने आपको देखा था ओपनिंग सेरेमनी में, तो उसमें मेरा मेडल था, तो मेरे को स्कीम भी मिल गया और मैं यहाँ तक पहुँची हूँ सर। स्पोर्ट्स व्यवस्था एक बात है, लेकिन देश मेडल तब प्राप्त करता है जब देश में स्पोर्ट्स कल्चर बनता है। दोस्तों, आपने बहुत बड़ा काम किया है, देश का नाम रोशन किया है। आपको मैं बहुत बधाई देता हूं और आप विश्वास कीजिए आगे भी आप विजयी होंगे और फिर से एक बार यहीं पर हम मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये लगातार तीसरी बार देश को मेडल दिलवाया है। बहुत आशीर्वाद बेटा। और थैंक यू सो मच। मैं सर के हाथ से बर्थडे था तो आज बहुत बधाई। वाह, ब्रावो यार। ये ओनली एक ही दिन सर मेरे स्वागत के ಯಾವುದೇ ಸುದ್ದಿಯ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ್ಲೇ ಒನ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಪ್ ಅನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.